Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, usually in videos, I suggest you to use four tools. Now, in this video, we will discuss what is the objective of these four tools and why we should use it. One tool I am always suggesting you to take the full length mock test. Second tool I am suggesting you topic test. Third tool I am suggesting you sectional mock test. And fourth tool I am suggesting you speed drill. Link of all these four tools is available in description box. Click the link, register, select these tools and apply coupon code AA03 to avail 10% off. You can buy these through SmartKida app also. Download the app, select all the four tools and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now we will understand one by one why we should use these. Now, full length mock test helps you on many counts. First, it helps us in practice because we have the exam like environment and we are able to practice. Sometimes we know the subject, but in a simulated environment, sometimes we get into panic mode. So, if we have done practice at our home in this similar environment, it can help us to take away our this problem in the real examination. So having exam like situation daily at home is always helpful, and that's why full length mock test must be attempted, whether you have read entire material or not, irrespective of that. Second advantage is diagnosis. Diagnosis means this help us to know where I am strong, where I am weak, where I should give more time, where I can save time. Say some topic is strong. If you go on reading that topic, it is waste of time. No need spending time because time is very limited. So if I can direct my time on the areas where I am weak, I can get more efficiency in less time. And that's why full length mock tests help you to plan your study in a systematic manner. Now, second thing is, say a person says I am weak in English, but if he can break this problem into small problems, means within English I am weak in filler, within English I am weak in this particular topic, within English I am weak in some other topic. If you can identify the topic and use the topic test and improve that topic by seeing the solutions part in topic test, ultimately your subject will become stronger. Now, then another issue can be that a person is good in reasoning, but a person is weak in English. Now, if he wants to improve English, then this sectional mock test will help him to give more time to English. Attempting sectional mock tests of pre-level, main level, mainly of English will help us him besides the full length mock test. So for focused attention on a particular subject, sectional mock tests help us a lot. Then comes some people are knowing everything, but they lack accuracy. They know everything, but they lack speed. How to build our speed and accuracy? Here comes the role of speed drill. Speed drill is a tool that will help you to build speed and accuracy at home. So every tool has its own objective, and that's why you must use all the four tools. Okay? God bless you all. I think now the things are clearer because some of you are confused. Why sir is telling every time use four tools. So I thought to make it clear through a video. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपने देखा होगा हमारी सभी वीडियोस के अंदर जहां हम टाइम टेबल देते हैं उसके साथ साथ हम स्ट्रेस करते हैं कि आप चार टूल्स को यूज करिए. अब कई लोग तो उसका अर्थ समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते. कई लोग पूछते हैं कि सर ये आप चार टूल क्यों सजेस्ट करते हैं, हमारा खाली मॉक टेस्ट से क्यों नहीं काम कर सकता. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी क्या महत्ता है और क्यों हमें लेना चाहिए. तो चार टूल हम क्या कहते हैं. आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए, टॉपिक टेस्ट आपके पास होना चाहिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए और स्पीड ड्रिल आपके पास होना चाहिए. चारों के लिए हमने जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, चारों चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03.
10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, चारों प्लान्स को सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब हमें समझना है ये चारों टूल का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चारों टूल हमें क्यों चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। कई बार क्या होता है, हमें विषय आता है, सब्जेक्ट आता है, मगर एग्जाम में जाके हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक सिमुलेटेड सा माहौल होता है जहां हमें स्पीड भी बनानी है, एक्यूरेसी भी बनानी है, एक एग्जाम का डर होता है। तो यही माहौल अगर हमें घर में मिल जाए और उस पर हम प्रैक्टिस कर लें तो हम एग्जाम हॉल में नहीं घबराएंगे। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने से आपको ये माहौल मिलता है और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर पाते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है डायग्नोसिस। तो जब हम कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, चाहे हमने अभी कम ही पढ़ाई करी है, तो मुझे पता लगता है कौन कौन सी चीजें मुझे आती हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं आती हैं। कई बार क्या होता है, जो चीजें हमें आती रहती है उस पर भी हम टाइम लगाते रहते हैं, टाइम कम होता है तो वो टाइम आपका वेस्ट होता है। अगर मुझे पता हो कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है तो उसको पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां वीकनेस है, यदि उतने ही टाइम में वहां लगाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कम समय में ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए मुझे पिन पॉइंटेड एंड सिस्टमैटिक स्टडी करना आवश्यक है, प्लान स्टडी करना आवश्यक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मुझे प्लान होने में मदद करता है। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई, डायग्नोज हो गया, प्लान हो गया और फिर एग्जीक्यूशन हो गया। अब मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है। अब पूरा का पूरा अगर हम कहेंगे इंग्लिश एकदम में इंप्रूव हो जाए, वो नहीं होगी। अगर मैं इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लूं और मैं ये देखूं कि ये मेरा इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत कहां पे है, फिलर में है या किसी और चीज के अंदर है, आरसी में है या किसी और चीज में है, तो अगर मैं वो टॉपिक चुन लूं कि जिसमें दिक्कत आ रही है और उसको मजबूत कर लूं तो वो नंबर मेरे आने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक चुनूं, उसको मजबूत कर लूं, फिर तीसरा टॉपिक चुनूं, फिर उसको मजबूत कर लूं। तो बिट एंड पीसीज में यदि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये टॉपिक टेस्ट की महत्व है। तो टॉपिक टेस्ट के जरिए हम एक एक टॉपिक को जब मजबूत करते चले जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है। इसलिए ये सेकंड टूल आपको चाहिए। तीसरा टूल है सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब होता क्या, 3 सब्जेक्ट है, हर आदमी का ही तो नहीं होगा तीनों सब्जेक्ट वीक होंगे, उसमें वेरियर डिग्री होगी। किसी का इंग्लिश बहुत वीक होगा, किसी का क्वांट बहुत वीक होगा, किसी का रीजनिंग बहुत वीक होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तो सबको टाइम देना पड़ रहा है। तो यदि मैं अपने को प्रायोरिटाइज कर लूं कि मेरी इंग्लिश वीक है, ज्यादा टाइम मुझे इंग्लिश को देना, तो कैसे देंगे? सेक्शनल मॉक टेस्ट के जरिए। अगर मैं ज्यादा टाइम सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश को दे दूंगा तो मेरी इंग्लिश भी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी मेरा सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा महत्ता देने के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट मेरे काम आएगा। फिर कई लोगों का क्या होता है कि स्पीड ही नहीं होती, पूरा ही नहीं पेपर होता, या करते हैं तो गलतियां बहुत होती हैं, एक्यूरेसी नहीं है। अब कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे मेरी स्पीड बन जाए, कैसे मेरी एक्यूरेसी बन जाए? तो इस समस्या का हल है स्पीड ड्रिल। स्पीड ड्रिल आपको घर पर मदद कर रही है अपना स्पीड बनाने में, एक्यूरेसी बनाने में, और इसीलिए ये चारों टूल मैं आपको यूज करने के लिए कहता हूं। कई लोग इसमें से खाली फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो बाकी टूल नहीं यूज करते, तो फिर इंप्रूवमेंट भी स्लो आती है। तो अगर आपको कम टाइम में ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो मेरी सलाह है आपको चारों टूल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।